FYBMM chapter number 3rd. Some parts are remaining. The chapter number 3rd, which name we are watching, that is writing tips and techniques. Okay, in this one we are watching what is stickers. Afterwards we are watching the Twitters, Facebook, their informations. Then caption writing we are completed, writing headlines completed. Now the one part is remaining that we are watching in today's lecture, that is Google Plus. Okay, so what is Google Plus? Google Plus is just also social. It's one of the social networking site like Twitter, Facebook, and Pinterest. Okay, when you are using the Google Plus, the audience is engaged in your writing, and it's your digital property which you are using for writing or content writing. Okay, so Google Plus is a software which you are using just like PowerPoint, and it's personally used for creating PowerPoint slide. Okay, it's personally using for doing something, showing your project. Okay, so Google Plus post you have to use very properly. It's get attention, shares and comments. Okay, how do you write on Google Post? First of all, in Google Plus so many images are available. Okay, these images are available but not in headlines. Okay, there are so many blogs available here. There are so many Pinterest, means some kind of images are available here, which is very important to creating the PowerPoint presentations. Okay, it's very supportive, large gorgeous images. Okay, which is you use for any kind of purpose. Just like they are given one Google Plus images. Okay, here you look the image, that is pictures, that how the one person is moving the cycles or bicycle, that given here. Okay, and the second chart is given the information about a special one graph. Okay, so all kind of images are using just like PowerPoint in Google Plus. If you want to another images, you have to use the Tumblrs, StumbleUpon, Society6, Behance, Reddit, Instagram and Flickrs, Quizsology. This kind of software you have to use the using for different kind of images just like PowerPoint in Google Plus 6. Okay, so Google Plus specially using Flickrs. Okay, to define the different kind of photographs and images. बहुत सारे फोटोग्राफ्स के लिए और इमेजेस के लिए गूगल प्लस फ्लिकर्स का इस्तेमाल करता है. गूगल प्लस ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप लोग जस्ट लाइक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हो और इससे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो. ओके, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको, पहले तो आप इमेजेस उठा सकते हो और या फोटोग्राफ्स उठा सकते हो. ये सब ऊपर के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके, ये ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, इनका इस्तेमाल आप करके बहुत सारी इमेजेस अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए ला सकते हो. उसके बाद सेकंड आता है हेडलाइंस. गूगल प्लस में आप कोई भी कंटेंट लिखते वक्त या राइटिंग करते वक्त एक पिक्चर्स तो आपने उठाया, उसके बाद उसके ऊपर एक पर्टिकुलर हेडलाइंस इंपॉर्टेंट है, जहाँ जैसे यहाँ पे है वैसी हेडलाइंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो हेडलाइंस के भी फीचर्स है. हेडलाइन इज़ यूनिक, यूज़फुल, अल्ट्रा स्पेसिफिक एंड अर्जेंट होनी चाहिए. ओके, सो हेडलाइंस 60 कैरेक्टर्स की ही होनी चाहिए. ओके, एक हेडलाइंस के नीचे सेकेंड हेडलाइंस भी आनी चाहिए. ओके, तो हेडलाइंस हमेशा 2 लाइन्स की होनी चाहिए, इतना ध्यान देना है. ओके, जिसमें से फर्स्ट सेंटेंस क्लियर होना चाहिए. जैसे ही आप पढ़ोगे तो लोग आपके व्यूज़ या ब्लॉग्स देखने के लिए इंटरेस्टेड होने चाहिए. ऐसी हेडलाइंस आपकी होनी चाहिए. नेक्स्ट है फर्स्ट सेंटेंस. तो गूगल प्लस पे आप जो भी चाहिए वो पोस्ट लिख सकते हो. इसके लिए जो लेआउट यानी बाजू की डिज़ाइंस लगेगी, वो डिज़ाइंस आप कोई भी ले सकते हो. इसके लिए आगे की जो थर्ड लाइन है हेडलाइंस के बाद, वो आएगी रीड मोर. अभी रीड मोर में आप क्या करोगे, आपके जो प्रोजेक्ट है उसके एक्सटर्नल फीचर्स या उसके एक्सटर्नल सेंटेंसेस ये आप दिखाने की कोशिश करोगे. मतलब अगले वाले पेज पे आप पोस्ट पे भेज दोगे. ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. ओके,
जब डेविड सैंडरिज ये राइटर्स राइटिंग करता था तो वो कौन कौन सी चीज़ें लिखता था देखो। पहले तो डेविड हेडरथ फॉर्मवर्थ उसने अपनी हेडलाइंस लिखी। 10 रूल्स ऑफ गूगल प्लस ये उसने लिखा, उसमें से फर्स्ट रूल्स उसने लिखना स्टार्ट किया। तो गूगल प्लस में कुछ लिखते वक्त आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला, कोर डीपली अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग अबाउट योर ऑडियंस। जब भी आप गूगल पोस्ट में पोस्ट लिख रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि राइटिंग ऐसी क्वालिटी की होनी चाहिए कि ऑडियंस को हर चीज़ की डीपली इंफॉर्मेशंस मिलनी चाहिए, कोर डीपली। ओके। दूसरा, गो डीप विद द ओरिजिनल रिसर्च। समझो आप किसी राइटिंग पे आप जो लिख रहे हो उसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने राइटिंग लिखा है तो उसके रिसर्च का भी आप ओरिजिनल रिसर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड, शेयर द नेवर बिफोर सीन इंटरव्यू। कई बार आप ब्लॉग्स में ऐसा इंटरव्यूज लिखो जो पहले कभी भी शेयर नहीं किया गया या बताया नहीं गया। अवॉइड रेड्यूडेंट, डुप्लीकेट एंड स्टोलन कंटेंट। तो रेड्यूडेंट आपको मालूम है कौन से वर्ड है, वो यहाँ पे नहीं लिखने हैं, किसी का चुरा कर नहीं लिखना है। जो भी आप लिख रहे हो वो कंटेंट प्रॉपर होनी चाहिए, ये किसी की स्टोल की हुई या थिपिंग की हुई या चुराई हुई इंफॉर्मेशंस नहीं होनी चाहिए। बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करनी चाहिए, इसलिए जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो उसको पब्लिक ने क्रेडिट देना चाहिए और पब्लिक ने ईजिली एक्सेप्ट करना चाहिए, ऑडियंस ने ईजिली एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसी राइटिंग लिखो। नेक्स्ट आपको ये बोला है, आपकी साइड पे आपकी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, मतलब कौन व्यूज़ करेगा, कौन ब्लॉग्स देखेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके। ऐसी उसमें सेटिंग करो, ऐसी प्राइवेसी वहाँ पे सेट करो। स्पेलिंग करेक्ट लिखो। फैक्चुअल एरर्स, अगर कुछ गलत एरर्स दिखा रहे हैं तो ग्रामर इग्नोर करके या उसको चेंजेस करके जो वर्ड है वो लिखो। ग्रामर अगर गलत है तो वो रिपेयर करो। राइटिंग करते वक्त ये याद रखो कि आप ह्यूमंस यानी इंसान के लिए लिख रहे हो, मशीन के लिए नहीं। तो मशीन यानी ऑथेंटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करो, हार्ड या हेवी लैंग्वेज इस्तेमाल मत करो। 11th उन्होंने ये बोला है, ऐसा पहले कभी नहीं लिखा गया है, ऐसा कुछ क्रिएट करके लिखो जब भी आप गूगल प्लस पे ब्लॉग लिखोगे। ब्लॉग यानी एक टाइप से प्रेजेंटेशन ही होता है जो कंपनीज देखना चाहती है। ओके। 13 उन्होंने बोला है कि जो भी आप टॉपिक लिखोगे वो कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। ओके। मतलब उसमें ज़्यादा आर्बिटरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। कहाँ पे स्टॉप होना है, कहाँ पे शुरुआत करनी है, इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको होना चाहिए। 14 उन्होंने बोला है, ऑब्वियस, मतलब जो भी आप लिख रहे हो वो बहुत ही प्रॉपर है ऐसा समझ के नहीं लिखना है। जैसे फेसबुक के ग्राफ सर्च उसमें मत लिखो। ओके। 15 उन्होंने बोला है, अगर कोई आपका स्ट्रेंजर्स आपकी ब्लॉग्स या आपकी इंफॉर्मेशन या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देख रहा है गूगल प्लस का, तो उनको वो इंफॉर्मेशन शेयर करना है कि नहीं, इसके बारे में बुकमार्क करके रखो। ओके। ज़्यादा अपने ब्लॉग्स का प्रमोशंस मत करो। ओके। उसमें ऐड कम डालो एंड कॉल इन एक्शंस कम करो। ओके। कुछ ही अच्छे मैगजीन्स इस्तेमाल करो, उसकी प्रिंट इस्तेमाल करो। ओके। शॉर्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशंस वहाँ पे लिखो जब भी आप ब्लॉग्स लिखोगे। ओके। ब्लॉग्स लिखते वक्त एक टाइम का भी मैनेजमेंट करो, क्योंकि पर्सन्स ज़्यादा वाइड इन्फॉर्मेशन रहेगी या वास्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी तो पर्सन्स या ऑडियंस पढ़ेगी नहीं, ये भी याद रखना है। ओके। एंड हमेशा ऐसा कुछ लिखो कि जहाँ पे पब्लिक आपसे हमेशा सुनने की कोशिश करेगी। ओके। नेक्स्ट है बोल्ड। तो आगे कुछ फीचर्स भी आपको याद रखने हैं कि जब भी आप राइटिंग करोगे तो आपकी राइटिंग में हेडलाइंस बोल्ड होनी चाहिए। इटैलिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मीन्स आप वहाँ पे इटैलिक ब्लॉग्स के ऊपर इटैलिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपने हेडलाइंस लिखी है वो इटैलिक में कन्वर्ट होगी। स्ट्राइक आउट भी कर सकते हो आप लोग। ओके। स्ट्राइक आउट यानी कोई एक वर्ड हाइपन्स लिख सकते हो, यानी बड़ा लिख सकते हो, कोई वर्ड छोटा लिख सकते हो। बुलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। ये एक टाइप का स्पेस बार होता है, 1 2 3 ऐसे बुलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, डॉट इस्तेमाल कर सकते हो, स्टार इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ प्रिमेटिव राइटिंग होती है।
ओके। उसके बाद गूगल प्लस में आपको चूज़ एंड शेयर्स ऑफ ऑडियंस शेयर्स करने का ये दिया है। ऐसे ऑडियंस चूज़ करो जो आपसे हाईली इंटरेक्शंस कर सके एंड कॉन्वर्सेशंस कर सके। ओके। अगर आपके गूगल प्लस में कुछ डिस्टिंक्शंस है, कुछ ब्यूटीज़ है, तो वो भी आपको वो पोस्ट कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखो। जो गूगल प्लस में कुछ लोगों ने वहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं, योर चॉइस, योर सर्कल एंड पब्लिक्स। इनमें से आपको जो चाहिए, अगर आपको सबको आपकी पोस्ट दिखानी है तो पब्लिक्स, अगर आपको आपकी कुछ ग्रुप मेंबर्स को दिखानी है तो योर सर्कल, यहाँ पे क्लिक करो। वैसे आपकी ऑडियंस आपको मिलेगी जो आपसे इंटरेक्शंस भी करेगी और कॉन्वर्सेशंस भी करेगी। ओके। तो गूगल प्लस में जब आप सर्कल को क्लिक करते हो, योर सर्कल, तो आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है और आपके सब्जेक्ट को सुनती है। ओके। तो सर्कल जब आप करते हो तो आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है। ये एक पैसिव या एग्रेसिव रिलीजियस के लिए हो सकती है, स्पोर्ट्स के लिए हो सकती है, पॉलिटिकल ट्रेंड के लिए हो सकती है। तो जो भी आप सेगमेंट लिखोगे उसके ऊपर आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन से वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो रिलीजियस, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के लिए अलग से इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ओके। सो यहाँ तक का याद रखो, ये है गूगल प्लस। ओके। चैप्टर नंबर 3 हमारा चालू है। जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा था वो अब हम लोग देख रहे थे। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।